السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 101 101۔ ذرا ہوش میں آؤ، میں نے چنگیر اور دودھ اس کے آگے رکھ دیا، یہ کھا لو پھر سو جانا۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور ہم دونوں نے ناشتہ کر لیا، اور میں نے اسے کہا کہ اب وہ بے غم ہو کر سو جائے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے مجھ پر شک ہو۔ میں کچھ اور کہے بغیر کمرے سے اور پھر اس مکان سے نکل گیا۔ یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ مکان مشکوک افراد کو چھپانے کے لیے کس طرح محفوظ تھا۔ اس کا محل وقوع اور اس کی ساخت ایسی اور اس کا حال حلیہ ایسا تھا کہ غیر آباد لگتا تھا، یا دیکھنے والے یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں مویشی ہوں گے یا بھوسا وغیرہ رکھا ہوگا۔ سائرہ نے مجھے شکی نگاہوں سے دیکھا ہی تھا، خود مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگا۔ عذرا کے مرنے پر مجھ میں جو تبدیلی آئی تھی وہ ایسی تھی جیسے میں زہریلا ناگ بن گیا ہوں، مگر میں سائرہ کو سلا کر باہر نکلا تو ایسے لگا جیسے میں وہ ناگ ہوں جس کا زہر مار دیا گیا ہو، اور اب یہ ناگ سپیرے کی بین پر پھن پھیلا کر جھومتا رہا کرے گا۔ دیہات کے لوگ بہت سویرے جاگ اٹھتے ہیں۔ میں تجمل اور منور کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ منور راستے میں ہی مل گیا، اور اس کے چہرے پر یہ اداسی کے بڑے گہرے اثار تھے۔ اس اداسی میں غصے کا تاثر بھی تھا۔ منور تو زندہ دل آدمی تھا، اور عذرا کی محبت اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ کیا تم نے عذرا کا انتقام لے لیا؟ اس نے پوچھا، اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، تم اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ تم کیا کرو گے؟ میں اسے اپنے ان 3 آدمیوں کے حوالے کر دوں گا جو کسی پر رحم کرنا جانتے ہی نہیں، منور نے کہا۔ جانتے ہو تجمل بھائی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا۔ اس نے تمہاری موجودگی میں کہا تھا کہ یہاں کسی عورت پر صرف ہاتھ اٹھانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں ایوب کی بہن کا کوئی قصور نہیں، ہم اسے ایوب کی عزت خراب کرنے کے لیے اٹھا لائے ہیں۔ تو کیا میں اسے اپنی بہن بنا کر یہاں رکھوں؟ منور نے کہا۔ میں منور کی جذباتی حالت دیکھ رہا تھا، بہت بری تھی۔ اس ذہنی حالت میں اسے کسی ایسی بات پر قائل کرنا جو اسے پسند ہی نہیں تھی بہت مشکل تھا۔ میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ بحث میں الجھا تو یہ میرے گلے پڑ جائے گی۔ میں اس کے ارادوں کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ عذرا میری خالہ زاد بہن تھی؟ میں نے کہا۔ میں تمہیں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں عذرا کا خون کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ انتقام کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ایوب کی بہن کو تم خراب کر دیا کہ نہ کرو، وہ تو خراب ہو ہی چکی ہے۔ اب اگر ہم اسے چھوڑ بھی دیں تو اسے کون قبول کرے گا؟ لوگ کہیں گے کہ خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ منور بھائی جس سے انتقام لینا ہے اس سے انتقام لے رہے ہیں، یہ مجھ پر چھوڑو۔ تم ایوب کے خاندان کے بچے کو قتل کر دو گے تو بھی عذرا تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ میرے ساتھ آؤ، میں ایوب کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تجمل بھائی کہاں ہے؟ وہ باغ کی طرف چلا گیا ہے، منور نے کہا۔ میں منور کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان میں چلا گیا جہاں ہم نے ایوب کو رکھا تھا۔ اس مکان کے صحن میں 3 گھوڑیاں اور 2 بھینسیں بندھی رہتی تھی۔ یہ مکان انہی کے لیے تھا۔ اب ان کے ساتھ ہم نے ایوب کو باندھ دیا تھا۔ ہم دونوں اس مکان میں داخل ہوئے تو نوکر ایک بھینس کو دھو رہا تھا، اور میں نے خود ایوب والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جاگ رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا تھا۔ سکندر، مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، خدا تمہیں بخشے گا نہیں۔ معلوم نہیں میں اسے کیا جواب دیتا کہ منور اس پر جھپٹ پڑا اور 2-3 گھونسے اس کے منہ پر مارے، اور پھر اس کے پہلوؤں میں بڑی زور زور سے ٹھڈ مارے۔
میں نے پیچھے سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اور اس طرح اس سے ایوب کو بچایا۔ ایوب کو دیکھ کر مجھے بھی منور جیسا غصہ آ گیا تھا، لیکن میں مار پٹائی کا شوقین نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر ترسا ترسا کر ماروں گا، اور گزشتہ رات کی طرح پیچ کس کا سرا آگ میں لال کر کے ہر روز اس کے جسم کو تھوڑا تھوڑا داغوں گا۔ میں اسے بڑی سخت اور ناقابل برداشت اذیت میں مارنا چاہتا تھا۔ بچوں والی حرکتیں نہ کرو منور، میں نے منور کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہ کام جو تم نے کیا ہے تمہارے نوکر بھی کر سکتے ہیں، دور کھڑے رہو۔ منور نے میری بات مان لی۔ میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ میں ایوب کے ساتھ رات والا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ منور کا ایک گھونسا اس کے ہونٹوں پر پڑا تھا، جس سے نیچے والا ہونٹ تھوڑا سا کٹ گیا اور وہاں سے خون بہ رہا تھا۔ ایک گھونسا آنکھوں پر لگا تھا۔ آنکھوں کے ارد گرد نیلاہٹ آ گئی تھی اور جگہ سوجنی شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک ہی دن اس کا سارا خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے پہلو میں منور نے جس زور سے ٹھڈ مارے تھے ان کے درد کا میں اندازہ کر سکتا تھا۔ میں ایوب کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ جو آدمی تھے ان کے نام اور پتے بتا دو، میں نے کہا۔ تم حرام کی اولاد ہو سکندر، ایوب نے کہا۔ تم طوطا چشم ہو اور پکے جرائم پیشہ بن گئے ہو۔ نہ میں نے کچھ کیا ہے اور نہ میرے ساتھ کوئی آدمی تھا۔ بہتر ہے کہ میرے گلے پر چھری پھیر دو۔ وہ تو پھیرنی ہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن آہستہ آہستہ تم اپنی زبان سے بولو گے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، نوکر کو آواز دی۔ وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ اسے تھوڑی سی روٹی کھلا دو، پانی بھی پلا دو۔ ہاتھ کھول دو سرکار، نوکر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پاؤں بندھے رہنے دو، ہاتھ کھول دینا، روٹی کھا لے تو پھر باندھ دینا۔ بھوکا مرنے دو اسے، منور نے دانت پیس کر کہا۔ تم نہیں سمجھتے منور، میں نے کہا، میں اسے کچھ دن زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نوکر روٹی لینے چلا گیا اور اس کے آنے تک میں ایوب کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور وہ مجھ پر غصہ جھاڑتا رہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بڑی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا اور اس کے دماغ سے ابھی تھانے داری نہیں نکلی تھی۔ نوکر روٹی لے آیا تو میں اور منور وہاں سے نکل آئے۔ نوکر کو بلا کر کہا کہ جب بھی وہ اندر اور اس کے پاس جائے ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھے۔ میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ شب بیداری کے ساتھ عذرا کی موت کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ ہم دونوں جب وہاں سے نکلے تو تجمل بھی آ گیا تھا اور وہ بھی غصے میں، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی بہن کس حال میں ہے؟ تجمل نے پوچھا۔ میں ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ ساری رات روتی رہی ہے اور اپنے بھائی کو کوستی رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا؟ تجمل نے کہا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ہاں یاد ہے، میں نے کہا۔ اگر تم ایسی بات نہ کہتے تو بھی میں اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک نہ کرتا۔ اسے صرف یہاں لے آنا ہی اس کے لیے بہت بڑی اذیت ہے۔ میں جسمانی طور پر تھکاوٹ تو محسوس کر ہی رہا تھا، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میں وجود کے اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں۔ میں نے سو جانا بہتر سمجھا۔ میں دونوں بھائیوں کو باہر ہی چھوڑ کر اس مکان میں چلا گیا جہاں میں سائرہ کو سلا آیا تھا۔ میرے مخصوص دستک پر نوکر نے دروازہ کھولا اور اس نے میرے پوچھے بغیر بتایا کہ وہ سوئی ہوئی ہے۔ اس کمرے میں ایک ہی پلنگ تھا، صحن میں بان کی چارپائی پڑی تھی۔ میں نے اٹھائی اور کمرے میں لے گیا۔ سائرہ اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ چارپائی کے دروازے کے ساتھ لگی تو بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ میں نے کمرے کی دوسری دیوار کے ساتھ چارپائی رکھی اور اس پر لیٹ گیا، اور فوراً ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا۔ بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد اپنی امی کو خواب میں دیکھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میں حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن 4-5 قدم کا فاصلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ امی کا چہرہ سائرہ کا چہرہ بن جاتا ہے، میں رک جاتا ہوں، اور یہ چہرہ میری امی کے چہرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں پھر ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ امی دونوں بازو پھیلا دیتی ہیں اور میں ان کے بازوؤں میں گر پڑتا ہوں۔ اب واپس نہیں جائیں گی نا امی؟ میں نے پوچھا۔
अम्मी मुस्कुराती हैं और वो कोई जवाब नहीं देती। मैं इधर उधर देखता हूँ। ये कोई मकान या कमरा नहीं, वसी कब्रिस्तान है। हर तरफ कब्रें नजर आती हैं। मेरी अम्मी एक पक्की कब्र पर बैठी हैं। मैं उन्हें देखता हूँ तो उनका चेहरा एक बार फिर सायरा का चेहरा बन जाता है और फिर ये मंजर धुंधला जाता है और मैं एक सैलाबी दरिया में तैरने लगता हूँ। सैलाब की मौजें मुझे यूं ऊपर नीचे करती हैं जैसे माँ बच्चे को बाजुओं पर उठाए हिला रही हैं। मैं बहता ही चला जाता हूँ और कहीं पहुँचने से पहले उस ख्वाब पर पर्दा गिर पड़ता है। आँख खुली तो कमरा रोशन नहीं था, लेकिन तारीकी भी नहीं थी और उससे मुझे अंदाजा हुआ कि दिन गुजर गया है और मैं सारा दिन सोया रहा हूँ। सायरा पलंग पर बैठी मुझे देख रही थी। मैं फौरन उठा और बाहर निकला। सूरज अभी अभी गुरूब हुआ था। मैंने नौकर से कहा, हम दोनों के लिए खाना और दूध ले आए। नौकर खाना ले आया तो मैंने दिया जला दिया। मैंने पलंग पर बैठकर सायरा के साथ खाना खाया। हम एक दूसरे के सामने बैठे खाना खा रहे थे। मुझे अजीब सा सरूर महसूस हो रहा था। घरों में लोग इसी तरह खाना खाया करते हैं। मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ और बेटा इसी तरह इकट्ठे बैठते हैं। मैं तो घरेलू माहौल से ना आशना हो चुका था। उस रात एक पराई औरत को अपने सामने बिठाया तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी रूह में एक तशंगी है जिसे मैं दबाता जा रहा हूँ। उस शाम जब सायरा मेरे सामने बैठी थी तो ये तशंगी बड़ी शिद्दत से उभर आई और हम दोनों ने खामोशी से खाना खाया। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरे सीने में एक तूफान उठ रहा है और मैं ये भी महसूस कर रहा था कि ये तूफान अगर रुक ना सका तो मैं घास की खुश्क पत्ती की तरह उसकी लपेट में आकर उड़ जाऊंगा और ना जाने ये तूफान मुझे कहां तक पहुंचा दे। हमने खाना खा लिया और नौकर चंगेर और बर्तन ले गया। मैंने बाहर जाकर उसे कहा कि वह चला जाए और रात को इस मकान में अकेला हुआ करता था। अब सायरा आ गई थी। मैं पलंग पर ही बैठा रहा। मुझे कब तक इस कैद में रखोगे? सायरा ने पूछा। और मेरे साथ क्या सलूक करोगे? अभी कुछ ना पूछो, मैंने कहा। मैं अभी ये भी नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। एक बात कहूं? सायरा ने कहा। तुम मेरे साथ खेल रहे हो, मेरी एक बात मानोगे? सायरा, मैंने कहा, जो कहना है कह दिया करो। बार बार मत पूछो कि मैं ये कहूं या मैं वो कहूं। मेरा तुम पर कोई हक नहीं, उसने कहा। कोई दावा नहीं। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि तुमसे अपनी बात मनवा लूंगी। मैं जानती हूं कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरे साथ जो भी सलूक करना है वो तुम अपने हाथों करना। मुझे उन वैशी देहातियों के हवाले ना कर देना। इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा, कि तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। दिल की बात पूछते हो तो ये तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, सायरा ने कहा। मैं जीते जी अपने आप को किसी के हवाले नहीं करूंगी। मेरा ख्याल है कि तुम अपने आप को बहुत ही खूबसूरत जवान समझते हो और तुम हो भी खूबसूरत। कोई लड़की तुमसे नहीं भागेगी। तुम जवान लड़की की पसंद के मर्द हो। लेकिन सिकंदर, मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखना। हाँ, जबरदस्ती कर सकते हो, तुम मर्द हो, ताकत वाले हो, मैं औरत हूं। लेकिन अपने आबरू को बचाने के लिए मालूम नहीं कि तुम्हारा क्या हाल कर दूंगी। सायरा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी खूबसूरत धमकियां देती हो। होश में आओ सिकंदर, उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और मेरे सर को आहिस्ता से झंझोड़ कर कहा। जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती है और जिनमें गैरत होती है उन्हें खुदा ताकत भी दे दिया करता है। गैरत ही ताकत होती है। मैं धमकियां नहीं दे रही, मैं तुम्हें यह बता रही हूं कि ये ना समझना कि बदमाश भाई की बहन भी उस जैसी होगी। मैंने अपने आप को इसलिए पाक साफ रखा हुआ है कि शायद उसी के सदके खुदा मेरे भाई के गुनाह बख्श दे। क्या आप मान सकते हैं कि मुझ जैसा आदमी जिसे खुदा ने जिस्मानी ताकत भी दी थी और रूहानी ताकत भी, उस लड़की से मरूब हो गया था? यकीन जाने अगर मैं उससे मरूब नहीं हुआ था तो कोई ना कोई ऐसा असर जरूर था जो मेरे वजूद में सरायत करता जा रहा था। वो तंदुरुस्त लड़की थी। उस जमाने के कद काट के मुताबिक बड़े अच्छे कद वाली थी। उसमें ताकत भी थी।
लेकिन वो औरत थी, इसलिए कमजोर थी। मैं उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ देता तो वो बल खाकर मेरे कदमों में गिर पड़ती। मैं उसे जलाने वाली लकड़ी की तरह उठाकर चूल्हे में भी झोंक सकता था। जिस तरह उसने मुझे धमकियां दी थी और उसके जवाब में मुझे ऐसा करना ही चाहिए था, लेकिन उसकी धमकियां मुझे कुछ अच्छी लगीं। मैंने एक बात गलत कही है। मैंने कहा है कि वो इसलिए कमज़ोर थी कि औरत थी। हकीकत ये थी कि औरत कमज़ोर नहीं होती। अपनी ताकत को उस लड़की ने खुद ही बयान कर दिया था। ये ताकत थी असमत और गैरत। जिस औरत में ये दोनों चीज़ें हों, वो एक नहीं 2-3 आदमियों का मुकाबला कर सकती है। औरत ही नहीं, मर्द की ताकत भी किरदार में होती है। जो आदमी गैरत का दामन छोड़ दे, यूँ समझो कि उसने तलवार फेंक दी। किरदार, सदाकत और गैरत मिलजुल कर ढाल भी बनती है, तलवार भी। ये ताकत मुझ में थी, फिर भी मैं अपने अंदर एक कमज़ोरी सी महसूस कर रहा था, जिसे मैंने उस वक़्त महसूस किया था, लेकिन मैं समझ नहीं सका था कि ये क्या है। एक तरफ तो तुम धमकियां दे रही हो, मैंने सायरा से कहा, और दूसरी तरफ तुम ये कह रही हो कि जिस सलूक की तुम्हें तवक्का है वो सिर्फ मेरे हाथों हो। तुम ऐसे तो नहीं थे सिकंदर, उसने कहा। तुम जो जिंदगी गुजार रहे हो उसने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। तुम में अच्छी और बुरी बात समझने की अहलियत ही नहीं रही। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि मैं तुम्हें मालूम नहीं क्यों अपना समझ रही हूँ, और मैंने बुजुर्गों का ये कौल सुना है कि अपना कत्ल भी करे तो लाश छांव में फेंकता है। एक उम्मीद सी दिल में है कि शायद तुम मुझे अपना समझ लो। अगर नहीं तो मैं एक बार फिर कहती हूँ, हिम्मत करो और मुझे खराब करने की कोशिश करो, लेकिन एक एक आदमी मेरे सामने आना। एक से ज्यादा आदमी तो बड़े बड़े पहलवानों को भी गिरा लेते हैं। सायरा, मैंने कहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। बचाओगे तो मुझसे दुआ लोगे, उसने जज्बाती से लहजे में कहा। तुम शायद नहीं जानते कि एक पाक औरत की दुआ अल्लाह ताला कितनी जल्दी कबूल करता है, और उस औरत की बद्दुआ आग भी लगा सकती है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही और तुम डरने वाले हो भी नहीं। मेरे सामने तुम्हारा कल रात वाला चेहरा है। तुमने कहा था कपड़े उतार दो, और तुम्हारे इस चेहरे में कोई तब्दीली नहीं आई। तुम्हारी आंखों में मुझे अभी तक वैशीपन नजर आ रहा है। मुस्कुराते हो तो ये मुझे भेड़ियों वाली मुस्कुराहट मालूम होती है। तुम मेरे जिस्म पर कब्जा कर सकते हो, दिल पर नहीं। और उसकी आवाज़ में और बोलने के अंदाज में अजीब सा ठहराव था। उसके होंठों पर तबस्सुम सा था, और ये तबस्सुम वो नहीं था जिसे शायर और अफसाना नवीस बड़े लजीज और दिलकश अल्फाज में बयान किया करते हैं और उसे हुस्न का एक हिस्सा लिखते हैं। सायरा के तबस्सुम में तंज था, चैलेंज था, और उसके लबो लहजे में एक गैबी ताकत का तासुर मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था। साथ ही साथ मैं ये भी महसूस कर रहा था कि उसका हुस्न पहले से ज़्यादा हो गया है, और उस हुस्न में तिलस्माती सा तासर पैदा हो गया है। मुझ पर ऐसी खामोशी तारी हो गई जो मेरी आदत में शामिल नहीं थी। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है, उसने मेरे एक गाल को आहिस्ता से थपथपाते हुए कहा, जैसे किसी बच्चे को कोई बात समझा रही हो। सायरा, मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ सोचने दो। तुम्हारी बातें मुझे भड़का रही हैं। मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे गुस्सा आने लगा। मालूम नहीं मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था या उस पर। मैं अपने आप में अज़तराब सा महसूस करने लगा। मैं उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया और कुछ देर बाहर घूमता फिरता रहा। मैं अपने आप में हलचल सी महसूस कर रहा था, लेकिन यह पता नहीं चलता था कि ये कैसी हलचल है। मैं शायद 2 हिस्सों में कटता जा रहा था। अगर मैं इस इरादे को जिंदा रखता कि इस लड़की से अज़रा का इंतकाम लेना है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये पैदा हुई कि इस लड़की ने ऐसी बातें की जिनकी मुझे तवक्का ही नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में लड़कियां रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मिन्नतें करती हैं, कदमों पर गिर पड़ती हैं, या अपने आप को मजबूर समझकर अपना आप उनके सुपुर्द कर देती हैं जो उन्हें अगवा करके ले आते हैं। लेकिन इसका रद्द अमल कुछ और ही था। मैं इस मकान से कुछ दूर जाकर एक ऐसी जगह बैठ गया जो ज़रा ऊंची थी। वहाँ सब्ज़ा था, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने ख्यालों में गुम हो गया।
कोई कमजोरी ऐसी थी जो मेरी जात में छुपी हुई थी और वो लाशऊर सी तौर पर उभर आई थी। मेरे सामने अजरा का चेहरा आ गया, मेरा खून खौल उठा और ये इरादा बेदार हो गया कि मैं वही सलूक सायरा के साथ करूंगा। इस जहनी कफियत में सायरा मेरी आंखों के सामने आ गई तो मेरे इरादे पर औस पड़ गई। सायरा अगर रोती, चीखती, चिल्लाती तो मेरी दरिंदगी में जान पड़ जाती, लेकिन उसने मुझे कुछ समझा ही नहीं था। मैं दो सवालों में उलझ गया। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? मैं ख्यालों की भूल भलियों में न जाने कहाँ से कहाँ जा पहुँचा, या एक ही जगह कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहा। मुझे वक़्त का एहसास ना रहा। आज इतना याद है कि मैं खासा ज़्यादा वक़्त वहीं बैठा रहा था। नेकी और बदी चक्की के दो पार्ट बन गए और ये पार्ट मुझे पीसने लगे। मैं चौंक उठा। मैं उसी कमरे में खड़ा था जिससे फरार हासिल करने के लिए मैं बाहर निकल गया था। कमरे में दिया जल रहा था जिसकी जर्द पीली रोशनी में और थिरकती लौ में मुझे सायरा पलंग पर सोई हुई नजर आ रही थी। मैं अपने ख्यालों की तलखी में उलझा हुआ अंदर ही अंदर तड़पता हुआ वहां से उठ आया था जहां जा बैठा था और उस मकान में पहुंच गया था। मेरे दिल पर घबराहट की लहर सी आई और गुजर गई। सायरा बड़े इत्मीनान और सुकून की नींद सोई हुई थी और उससे मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बहुत देर बाहर बैठा रहा हूं। सायरा के चंद एक बाल उसके रुखसार पर आ गए थे। गोरे रुखसार पर गहरे भूरे रंग के ये चंद एक बाल मुझे परेशान करने लगे। कुछ सोचे समझे बगैर मैं आगे बढ़ा और हाथ से ये बाल उसके रुखसार से हटा दिए। मैंने ऐसी हरकत जिंदगी में पहली दफ़ा की थी। मुझे अपनी अम्मी के बाल याद आए और जिनके साथ मैं खेला करता था। जी में आई कि एक बार फिर उस लड़की के बालों को हाथ लगाऊं। अपने आप ही मेरा हाथ सायरा के सर पर चला गया और मेरी उंगलियां उसके बालों के साथ खेलने लगी और फिर मैंने अपने आप को पलंग पर बैठे हुए पाया। मालूम नहीं किस तरह सोई हुई सायरा का एक हाथ मेरे हाथ में आ गया था और मुझे जब उसका एहसास हुआ तो मैंने निहायत आहिस्ता से उसका हाथ उसके पहलू के साथ रख दिया। वो पीठ के बल सोई हुई थी। मेरी नजरें उसके माथे से पांव तक और फिर पांव से माथे तक फैलती हुई चली गईं। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि मेरी सांसों का तसलसल उखड़ता जा रहा है, दिल की धड़कन तेज होती जा रही है और मेरा ऊपर वाला होंठ महसूस कर रहा है कि सांसों में तपश बढ़ती जा रही है। अचानक मकान के बाहर दरवाजे पर वो मखसूस दस्तक हुई जिस पर वो दरवाजा खोला जाता था। मैं पलंग से इस तरह उठा जैसे अपने आप को जबरदस्ती उठाया हो। कमरे में से भी मैं इस तरह निकला जैसे अपने आप को धकेल कर निकाल रहा हूं। बाहर वाले दरवाजे तक मैं घसीटता हुआ पहुंचा और वो दरवाजा खोला। मुनव्वर आया था। जल्दी आओ सिकंदर, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। फौरन आओ, क्या हो गया है? अयूब भाग गया है, उसने कहा। भाग गया है? मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। जल्दी निकल यार, उसने झंझलाकर कहा, और वो मेरी घोड़ी भी ले गया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अयूब में इतनी अकल, हिम्मत और ताकत है। मैं बाहर निकला, बाहर से दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी और मुनव्वर के साथ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उससे पूछा कि अयूब किस तरह भागा है और ये इतला किस तरह मिली है। उसने इतना ही कहा कि नौकर तुम्हें सुनाएगा। हम दौड़ते दौड़ते उस मकान में पहुंचे जहां अयूब को रखा गया था तो जम्मल वहीं था। नौकर जो उस मकान में पहरेदार की हैसियत से सोता था वो डरा सहमा हुआ वहीं खड़ा था। वो निकल गया है तो जम्मल ने कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ वो किस तरह निकला है, ये मैं बाद में सुनूंगा। मैं यक लख्त स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर बन गया और कहा, पहले ये बताओ कि उसे यहाँ से निकले कितनी देर हो गई है? वो उसे नौकर को मार कर निकला है, जम्मल ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा, जो कुछ देर बेहोश पड़ा रहा और उसे मालूम नहीं कि ये कितनी देर बेहोश रहा है। मैंने नौकर से दो चार बातें पूछी तो मेरा अंदाजा ये था कि अयूब को निकले आधा घंटा हो गया है, बल्कि आधे घंटे से खासा ज्यादा वक्त गुजर चुका है, क्योंकि नौकर होश में आकर उन दोनों भाइयों को इतला देने और ये दोनों सोए हुए थे। फिर मुनव्वर मेरे पास आया और हम दोनों उस मकान तक गए। फासले ज्यादा थे। सिकंदर, मुनव्वर ने कहा, ज़ेन तो हमारे घर में पड़ी है। अयूब ज़ेन के बगैर घोड़ी पर गया है और लगाम? मैंने पूछा। मैं देखता हूँ।
नौकर ने कहा और वो दिया लेकर दूसरे कमरे में गया। बाहर आकर बोला, तीनों घोड़ियों की लगामों में अंदर दीवार के साथ लटकी हुई हैं। वो इतना शासबाब नहीं हो सकता कि जीन और लगाम के बगैर घोड़ी सर पिट दौड़ाकर फौरन शहन पहुंच जाए। मैंने कहा, इन घोड़ियों की जीनें फौरन लाओ। और उस मकान में 3 घोड़ियां बंधी रहती थी। उनकी जीनें इन लोगों ने अपने घर में रखी हुई थी। अयूब मुनव्वर की घोड़ी ले गया था, जो सबसे अच्छी और आला नस्ल की घोड़ी थी, और उसके गले में जो रस्सा था वो घोड़ी के साथ गया था। नंगी पीठ पर सवार होकर लगाम के बगैर घोड़ी को सर पिट दौड़ाना आसान काम नहीं होता। फिर भी बहुत सा कीमती वक्त गुजर गया था और जीनें अभी नहीं आई थी।